हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम। इतने सारे नूब भेज दिए, क्या हो गया भाई? क्या टेंशन हो गई? लेट हो गए इसलिए? हाँ जी, नमस्कार 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 स्पर्श। हाय श्रेया, हेलो। ठीक है, हेलो गरिमा, गुड, वेरी नाइस। हाय विवेक, हाय रोहित। हाँ जी, फिर नूब। गलत बात। अब पता लग गया कि सर को अच्छा नहीं लगता तो नूब भेजने, गलत बात है ना ये तो। सो सी आर रिविजन क्विज। गुड इवनिंग प्रगति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ध्रुव, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार हो गया है सबको। आगे बढ़ा जाए, बाबुल के घर से ढेर सारा प्यार। हाँ, so before I begin, I would say that, when you're revising your stuff for CAT 21, and if you feel that, now you've got a good grip over, basics of critical reasoning and everything. So critical reasoning के para-based questions तो आप करते ही रहो, obviously, ठीक है? Apart from that, para-based questions के अलावा जो आपका basics है ना, for conclusions and everything, what I've decided is like, once in a week at least I'll keep your revision quiz, see our revision quiz. So just by attending the revision quiz also an hour session or 75 minutes or whatever, आपका पूरा revision हो जाएगा CR का। तो उसके लिए इतना अलग से you're not supposed to study them, ठीक है? ये I've thought of, and let me know we can do that or not. We can discuss this on Telegram. So then you can concentrate more on reading, then you can concentrate more on on your vocab, solving a few para-based questions daily, and then apart from VRC, you can concentrate more on your other subjects as well. ये तो ऐसे भी बहुत easy है, मैं तो हमेशा कहता हूँ VRC तो सबसे easy है ना? बड़े जिंदगी में आगे क्या बोलती पब्लिक? चल पड़े, चलो। So before we begin, हाँ, so अब जैसे कि 97, 96 डेज कुछ रह गए हैं, तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया है आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ से। देखो कि स्वेटिंग और ब्लीडिंग दोनों में से कुछ होना तो जरूरी है। अगर दोनों से बच जाओ तो पॉसिबल नहीं है। अगर जी रहे हैं दुनिया में तो स्वेटिंग और ब्लीडिंग में से कुछ तो होगा बस। हाँ, ये जरूर है दैट इफ यू स्वेट मोर you can choose to bleed less. Otherwise, once it's out of your hand, you'll bleed more. Okay? चलिए. So this is our revision batch. This is our 100% Tyler's Club. Usually, yes, exactly, Spurs. Perfect balance is required. So usually our class happens at 1 o'clock every day. That's a revision batch. Apart from that, 5 o'clock in the evening, sometimes we keep certain sessions to revise certain stuff. I'll make it, I'll give it a better structure next month. This month, 1 o'clock is the structured program we have. Tomorrow's session at 1 o'clock would be mixed bag of previous year questions, para-based. ठीक है? कल mixed bag करेंगे para-based questions का 1 o'clock on YT. So ये हमारा चैप्टर 2 हो गया। मजा आएगा। एग्जैक्टली सम 8, 9, 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? क्रिटिकल रीजनिंग रिवीजन क्विज चैप्टर 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने आर्गुमेंट्स अजम्पशंस किए थे, कोर्स कॉज एंड इफेक्ट किया था, थीम किया था। आज हम एनालाइजिंग द आर्गुमेंट करेंगे, थीम डिटेक्शन करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। ओके, फॉर दोज हु आर न्यू, दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। एवरीथिंग इज रिटन हियर, रेलेवेंट डिटेल। वीआरसी का टॉपिक है, वीआरसी पढ़ाता हूं मैं विद अनअकैडमी, आई टीच वीआरसी। तो I have to talk about ERC only, nothing else. बाकी इंटरव्यूज, जीडीज एंड ऑल जब कॉल आ जाएगी तो फिर अपन कन्वर्ट करवाएंगे, बात करेंगे, एकदम आपस में हेल्प करेंगे तब भी, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा डेमोक्रेटिक सा, हमारा कोऑपरेटिव सा, बड़ा ही ब्यूटीफुल, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स वाला हमारा ग्रुप। यू कैन ऑलवेज जॉइन दिस, whoever has not yet. So this is the moment we always feel also thankful to Unacademy. We say also thank you to Unacademy that all these sessions are happening, all these free sessions are happening, the special classes on Unacademy app, in fact the YouTube classes, all this has been, it is brought to you by Unacademy. So, and anybody who's looking for CAT 22, 23, this is the perfect time to begin your preparation. Pick up your structured program, pick up your paid subscription, the Plus subscription or Iconic subscription. I can see certain students already subscribed, and the other people can always take feedback from them. Screen load हो रही है बेटा मंथन, मेरी तरफ से I don't think any issue is there, but still अगर और किसी को भी कुछ लग रहा है तो बताओ।
बिल्कुल 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 गुड, थैंक यू स्पर्श, थैंक यू वेरी मच. मानसी saying all good, Anurag saying no issue, तो मंथन you please look into it, on your side. हाँ, चलिए. Now whoever is making up your your mind for picking a paid subscription, this is the fee structure. The more the you go for longer term, this is always more cost effective. अच्छा, okay Ashutosh, okay. And do not forget to use the code, that's GSMBA. GSMBA is a code which gets you 10% additional benefit. GS is, my students call me GS, and MBA is the dream you have. Plus subscription, this is the fee structure. If you go for 6 months, 12 months, 24 months, the time duration you have, it is more cost effective, and still you can use the code GSMBA. So whatever you can see, uske upar aapko additional 10% discount ho jayega. Iconic का difference आपको दिख रहा होगा fee structure में, but that's something which has its own value. No, Vedanshi, good evening, beta, good evening. The batches are we've already begun the batches. Start होते रहते हैं, end होते रहते हैं. So अभी जैसे ये 3 batches are there, Legend batch, Bullseye, and Aim for Cat 22 batches are there. So accordingly you can pick up. Those who are picking up for 22 and 23, this is the best time because it has an offer which gives you 3 months extra. Iconic, when I talk about what's basically Iconic is one-on-one mentoring, where when we talk about personalized learning experience, we talk about discussing thoughts, study planning, mock test analysis, very customized way. So if you guys are planning to go for paid subscription, I would rather suggest to go for one-on-one live mentoring. Chaliye, kya bolti public? Revision quiz, chapter 2, critical reasoning. What say, guys? Vedanshi, Vivek, Anurag, स्पर्श, मंथन अब ठीक है सब? मनु, सुष्मिता, सलोनी, हाँ जी, विवेक, अनुराग, संस्कार, नाइस. चलो जी, सब लोग फैस्टन योर सीट बेल्ट्स. बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांधते हैं हम लोग. हाँ, कुर्सी की पेटी बांध लो, सर पे कफन कस लो गाइस, क्योंकि याद रखना है कि अंदर का तापमान सेट होना चाहिए, बाहर के तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? अंदर लड़ाई, माइंडसेट है ना. माइंडसेट ठीक रखना है, स्टेबल रखना है, हैप्पी रहना है, एटीट्यूड हाई रखना है. ओके. सो क्रिटिकल रीजनिंग रिवीजन क्विज चैप्टर 2. मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन के बाद उसका डिस्कशन होगा. कॉन्सेप्ट डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी नहीं. किसी का कोई डाउट हो तो बोलना. ओके, आई विल ऑलवेज आस्क यू बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डन. चलो पब्लिक, स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से. आई एम सो श्योर आपको कंक्लूजन पता है क्या होता है. कंक्लूजन वो होता है जिसमें डाउट 1% का नहीं होता. 100% कंक्लूड होगा तो ही कंक्लूजन होगा, अदरवाइज तो अजम्पशन हो जाएगा. हाय अंश, लॉन्ग टाइम बच्चे. हाँ, वेरी लॉन्ग टाइम. हाँ, सो स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या करते हैं अपन लोग? 100% पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. अगर 99% भी है तो कंक्लूड नहीं हो रहा है. डन. चलिए स्टार्ट. ये रहेंगे आपके ऑप्शंस. ओनली वन फॉलो, ओनली टू, ईदर और, नीदर नॉर और बोथ. ठीक है? ए बी सी डी ई, ये आपके ऑप्शन है, याद रखना. ठीक है? ए बी, ईदर और इज सी. ठीक है? डी इज नीदर नॉर एंड ई इज बोथ. डन. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इधर और, सी इधर और है. ठीक है? डी नीदर है और ई बोथ है. ई इज बोथ. अरे वाह, लिखा हुआ है, वेरी नाइस, इजी हो गया. अभी देता हूं, पोल देता हूं, रुको. आई विल हैव टू फर्स्ट. आप सॉल्व करके रख लो एक बार. आई जस्ट गिव यू द पोल. हाँ जी, ये मेरी आंसर. क्या बात है, ऐसा?
He was expecting 100%. 80% people. बोलते कम हो जाता है परसेंटेज. Okay, okay. Almost 80% people are getting the right answer. जल्दी मत रखा करो, है ना. जल्दी रखने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले ध्यान रखना है कर क्या रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड क्या हो रहा है. भागा दौड़ी नहीं करनी है. ओके. चलो, हुआ. ठीक है जी. अब इसमें हाय हाय गुड इवनिंग किशला, आई डिडंट सी बेटा, आई एम सो सॉरी. हाँ. So only conclusion one follows. कोई issue? India's economy is depending mainly on forest. Mainly on forest. अगर mainly वो उस पर depend कर रही है, so conclude हो गया ना कि trees should be preserved to improve Indian economy. क्योंकि Indian economy depend कर रही है, तो first तो होगा ही. मैंने देखा यहाँ पर neither nor भी किया है किसी ने. क्यों? कंक्लूड नहीं कर सकते? कोई प्रॉब्लम है? यू नीड टू टेल मी अ वर्ड ईयर और और अ डीकोडिंग ईयर कि जिससे अपन कंक्लूड नहीं कर सकते. कंक्लूड कर सकते हैं, बट इंडिया वांट्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन. फिर गलत हो जाएगा. एंड प्लीज आई सजेस्ट कि सर ये नहीं होता तो कर लेते क्या, वो नहीं. नहीं किसले अभी मत सोचो. You yourself give more space to get things complicated. हाँ. सो अभी जो सामने है बस वो करते जाओ, करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, डन. कंक्लूजन एक बार सेट हो गया. कंक्लूजन 100% होता है तो ही मानते हैं उसको कंक्लूजन. 1% भी डाउट होगा, हाँ, स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले गए रोहित, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलो इसमें आओ. गेट मी 100% इन दिस, कम ऑन. गेट मी 100% इन दिस. करण, पुष्पेंद्र, गरिमा, संचित. पुष्पेंद्र, यू देयर इन द वाईटी सेशन, है ना? मजा आया ना यहाँ पे? Now we are getting only 35% people are getting the right answer. Not even 35 now, 30% people. जज्बात बदल गए. कोई बात नहीं करण, कोई बात नहीं. ये लड़ाई तो जरूरी है, इसी के लिए तो आए हो आप लोग. तब तक लड़ेंगे नहीं जब तक मजा कैसे आएगा. आ जाओ. तो इसने कहा आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस. अब ये आपको डीकोड करना होगा. Like I tell you, before we move ahead, I tell you about my own experience in life. And I was like your age, I used to feel that I know a lot because I started reading also and everything. But जैसे जैसे मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे लगता है मुझे कितना कम समझ में आता है. मुझे लगता है मुझे कितना कम पता है. So I can actually understand what the statement says. It says I know nothing. I know nothing except the fact of my ignorance that I know very less. नो राइटर्स नॉलेज इज वेरी पुअर तो बात हो नहीं रही, क्योंकि पुअर नॉलेज पुअर होना इज अ रिलेटिव टर्म. वो यहां से बात नहीं आ रही समझ में. ठीक है, वी कांट कंक्लूड दैट. हो सकता है पुअर भी हो सकता है, बट वी कांट कंक्लूड इट. बट वन थिंग वी कैन इजीली कंक्लूड दैट द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, एज आफ्टर डिकोडिंग दिस स्टेटमेंट, दैट वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाय अ सिंगल पर्सन. That is why it says I. So यहाँ पर I से हम लिख ले सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन अगर ये बात अगर कह रहा है, तो what we can conclude that the world of knowledge is too vast to be explored by a single person. हाँ, exactly. It is very philosophical, no doubts about it. जैसे गलत हुआ वैसे ही समझ में आ गया क्यों गलत हुआ. How innocent and how honest statement it is, किशले. Very nice. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े. अंकी जस्ट ज्वाइन बेटा, आगे बढ़े इसमें अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो, है ना? ठीक है. So I'm just waiting for 3-4 seconds if somebody would ask, otherwise I'm moving ahead. Okay. All right. Next question, guys. अब यहां पर भी लड़ाई है. सोचो आराम से.
60% पीपल आर गेटिंग द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस पोल। मैं भी डिस्कस करता हूं इसको। यार अब पता है क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को व्हाई नॉट ई, राइट मानसी, व्हाई नॉट ई? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है काफी लोग इसमें ये बात करेंगे। देखो, मैं आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ सोर्सेज जहां पर ये क्वेश्चन है, कुछ बी बोलते हैं जो मैंने आपको दिया, कुछ ई भी बोलते हैं। ठीक है, कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। अब यहां पर हम कर रहे हैं कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूड क्या कर सकते हैं? तो डेथ कीप्स नो कैलेंडर, अब स्टेटमेंट से कंक्लूड करना है हाँ या ना, एक एक करके बात करते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया कि भाई देखो, ऐसा ऐसा अलग सोर्सेज में इसमें अलग अलग आंसर्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मैं पर्सनली कहता हूं कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर, अब अपने को कंक्लूड करना है स्टेटमेंट से। सो मैन मस्ट डाई वन डे, ये इस स्टेटमेंट से कैसे कंक्लूड हो रहा है? इससे तो ये क्लियर हो रहा है ना कि कैलेंडर नहीं है, कभी भी आ सकती है, लेकिन आएगी आएगी ये कहां लिखा है? सर अब घर आए उठे देर से गलत आ रहा है तब ठीक हुआ आंसर, बारिश में खड़े होकर क्लास कर रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे मुझे पर्सनली आई वुड गो विद बी। आई से ओनली कंक्लूजन टू वुड फॉलो बिकॉज इट सेज डेथ कीप्स नो कैलेंडर। बट आएगी आएगी ये कहां लिख रहा है कि मैन मस्ट डाई वन डे? ये इस स्टेटमेंट से कहा, ये तो अपनी जीके यूज किया हमने। यस और नो? इफ यू टेल मी दैट इन दिस स्टेटमेंट वेयर डू यू फाइंड इट? राइट, व्हाट डू यू से? लड़ो, उसमें कोई इशू, आपको तो पता है आई कंप्लीटली अग्री टू डिसएग्रीमेंट्स, है ना? मेरे को तो वो कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं कि भाई साहब मेरे को मान लो मैंने बोल दिया अब सब सही हो गया जिंदगी में। अपने साथ ऐसा है नहीं। फर्स्ट इज नॉट साउंडिंग ग्रामेटिकली करेक्ट, नहीं मैन मस्ट डाई वन डे, यार इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कोई नमन, ग्रामेटिकली तो कोई इशू नहीं है। हाँ, when they die they don't know, but they'll die or not according to the statement is not given, according to the statement what I'm saying. So कैलेंडर नहीं है कि कब आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा ये तो नहीं है। नहीं, क्या होता नहीं, मत करो, कंफ्यूज मत हो कि क्या होता, ये बताओ, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? आई वुड गो विद बी। एंड अगर कंफ्यूज है ना, हाँ, पता नहीं, मुझे एक्चुअली कोई कंफ्यूजन नहीं है। द ओनली कंफ्यूजन आई हैव इज लाइक व्हाई द अदर व्हाई लॉट ऑफ सोर्सेज गिव दिस आंसर ई आल्सो, एंड दैट्स हाउ आई केप्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी बी बिकॉज I would go only with the statement. The statement talks about it keeps no calendar. It will come definitely, ये नहीं लिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में प्रिसाइसली स्टेटमेंट पर ही तो स्टिक करेंगे, बिल्कुल स्पर्श करेक्ट। अ मैन मस्ट जीओटी रेफरेंस, मंथन चुप कर जा। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में अपन क्या करते हैं? फॉलो अप। कोर्स ऑफ एक्शन में अपन क्या करते हैं? फॉलो अप। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें? लाइफ में सिचुएशन तीनों होती है, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव। प्रॉब्लम में होते हैं, पॉजिटिव से सिचुएशन होती है, भाई कॉल आ गई, कॉल आ गई, 99.99% आ गया सबका, ठीक है, अब कॉल आ गई है आईएम से, अब क्या करना है? वो भी तो कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। या जो सोचा था किसी स्टूडेंट की, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की उस तरह का स्कोर नहीं आता है, अब क्या करना है? 4 कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, कौन से में लेना है? दैट्स आल्सो फॉलो अप। सो कोर्स ऑफ एक्शन क्या, अब क्या ठीक रहेगा? सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? लॉजिकल, फिजिबल, प्रैक्टिकल। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए हमेशा जिंदगी में? लॉजिकल, फिजिबल, प्रैक्टिकल। ठीक है, होना चाहिए, डब्ल्यूएटी होना चाहिए। मुझे, मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है किशला की डब्ल्यूएटी रहेगा। नहीं सुष्मिता, कोर्स कॉज एंड इफेक्ट नहीं, अभी कोर्स ऑफ एक्शन। चलो, सो सॉल्व। एटी परसेंट, more than 80%, 90% people are getting it right. Very good. Both are correct. I was expecting 100%, huh?
अब इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं क्वेश्चन में, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली मेकिंग यू विजुअलाइज द रियल केस। ठीक है, ये तो रियल केस वाला है, तो इसमें इशू है नहीं, तो सही होना 100% होना चाहिए था। करण, सुष्मिता, अनुराग are getting 4 on 4. Sparsh, Manu, Garima, Sanchit, Kishle, Ansh and Prince are getting 3 on 4. ठीक है, गलती से टाइप हो गया। यस, ई फॉर इजी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें किसी को कोई डाउट? 5 seconds आई एम वेटिंग एंड आई एम स्टिल वेटिंग। अगर कोई भी किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज विल गो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रोहित, गलत टाइप होने से इशू नहीं है, आना चाहिए अपने को, है ना? हाँ चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, टेल मी द आंसर। ध्रुव, गरिमा, प्रेरणा, करण, संचित, प्रियंका, विवेक, मंथन, प्रिंस, प्रगति, श्रेया, संस्कार, प्राची, विक्रांत। अब मैंने इसमें क्या टाइम कम दिया, जल्दबाजी में गलत हुआ नहीं हुआ? और जैसे गलत हुआ आंसर समझ में आ गया होगा, यस नो? जैसे गलत हुआ आंसर समझ में आया या नहीं आया? देखो, आप में से बहुत से लोगों ने दोनों करें कि दोनों होंगे, है ना, जबकि आंसर है अपना सेकंड। अब बताओ फर्स्ट क्यों नहीं होगा? जस्ट टेल मी one word of the first course of action which tells you कि आंसर नहीं। less than 50% people got this correct. You know what? नहीं, financial is not the right word. जिससे ना, नहीं stick, yes अंश, exactly, immediately। severe drought है, severe drought है, तो immediately पैसे दोगे कि खाना दोगे? एड दोगे, खाना दोगे, या पैसा दोगे इमीडिएटली? अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, उसको वो इमीडिएटली नहीं होगा। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड, राइट? इस वजह से ये गलत हुआ है। फूड, वाटर एंड फॉडर शुड इमीडिएटली बी सेंट टू ऑल दोज एरियाज, बस, बिल्कुल। सो सेकंड इज द करेक्ट वन। बाद में आएगी फाइनेंशियल हेल्प, तो इमीडिएटली थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प, थोड़ी खाना, थोड़ी सिक्के थोड़ी खाएंगे बेचारे लोग, है ना? उनका कैटल है, खुद का है, बच्चे हैं, है ना? तब इंसान को समझ आता है कि एक लेवल के बाद पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलो, इमोशनल कर दिया। हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी डाउट? एक वर्ड अपन ने उठाया, अपने को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। वैसे भी हाँ, इसीलिए तो अपन करते हैं बेटा ये पिछले, ये सारी क्विजेस वगैरह अपन इसलिए तो करते हैं कि जो ध्यान नहीं जाए जहां पे, धीरे धीरे जाने लग जाए, है ना? चलो, स्कोर्स बेटर हो रहे हैं, और क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। संचित, ध्रुव, करण, गरिमा, निकुंज। गुड गरिमा, योर हाय सलोनी, लॉन्ग टाइम बेटा। Consistently you're drawing good scores, Garima. If I look at the leaderboard after 6 questions, Karan is on 6 on 6. क्या बात है लड़के, छाया एकदम। संचित, गरिमा, प्रिंस, हर्षा, प्रगति, अनुराग are getting 5. ध्रुव, मनु and अंश are getting 4. Okay. ठीक है जी, अब बताओ क्या प्रॉब्लम, कोई इशू इसमें? इसमें क्या इशू था? हाय सलोनी। Since its launching in 1981, Vayadut has so far accumulated losses of इतना, ठीक है? So Vayadut should be directed to reduce wasteful expenditure। कोई हो तो नहीं रहा, उस पर ध्यान देंगे। What are wasteful expenditures? So wasteful expenditure ऐसा हो सकता है कि मान लो कि एक छोटी फ्लाइट है और उसमें आप ब्रेकफास्ट ऑफर कर रहे हो लोगों को, ठीक है? Let's say you're offering snacks। एक फ्लाइट है 2 to 3 और आप उसमें स्नैक्स ऑफर कर रहे हो।
यूजुअली लोग लंच करके बैठते हैं, स्नैक्स नहीं खाते हैं, आप उसकी कॉस्टिंग आ रही है बट पीपल आर नॉट इवन यूजिंग इट, ओके, आधा फेंकने में जा रहा है, थ्रो कर रहे हैं, सो वैल्यू जो जनरेट हो रही थी वो तो नहीं हो रही, और वो एक्सपेंडिचर जो है वेस्टफुल हो गया, यानी कि वो तो ड्रॉ तो नहीं कर रहा ना लोगों को कि भाई अगर लोग देखें कि यार यहाँ इस वाली फ्लाइट में ठीक है, इसमें तो खाना भी मिलेगा, आ रहा है बात समझ में? तो जब 2 से 3 वाली फ्लाइट है तो उसमें खाने से लोगों को ड्रॉ नहीं हो रहा है वो अटेंशन, तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, राइट? किसने डन? अब ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना, एन अमाउंट ऑफ अबाउट ₹300 शुड बी प्रोवाइडेड टू आयुधू टू मेक द एयरलाइन, ये तो मम्मी कर सकती है बेटे के लिए जब पापा डांट रहे होते हैं, नहीं कोई बात नहीं इसको और पैसे दे दो, जबरदस्ती थोड़ी दे देंगे है कि नहीं? डन? तुमने ये नुकसान कर दिया, हाँ इसको और पैसे दो, इससे नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम डिटेक्शन। थीम समझते हैं ना अपन? थीम क्या है, किस किस तर्ज पे बात हो रही, क्या थीम पे बात हो रही, सेंट्रल थीम है क्या? देखो एक होता है सेंट्रल थीम और एक होता है थीम। सेंट्रल इज फोकल पॉइंट, बाकी सारी भी बातें हो रही होंगी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2 क्वेश्चंस करके देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये क्या होता है ये एक्चुअली सारे आपके पैरा बेस्ड क्वेश्चंस का ही पार्ट है, आपको सिर्फ थीम डिटेक्ट करना है, एक क्वेश्चन कर हो जाएगा, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करने हैं, ठीक है? बेसिकली आपकी, आप लोगों की स्पीड, आपको रिमाइंडर्स कुछ चीजों के वाइल सॉल्विंग आपका फोकस सेट रहे, ये दिस इज द क्वेश्चन। चलो आ जाओ। So each of the following questions contains a small paragraph followed by a question on it. Read each paragraph carefully and answer the question. Easy questions है, इसलिए इनको इन्फ्रेंशियल में या उसमें वो नहीं करेंगे, बस जल्दी जल्दी करने हैं, रीडिंग स्पीड क्विक रखनी है। डन? एवरीबॉडी रेडी? गोली रेडी? स्ट्राइकर रेडी? चलो गिव मी द आंसर। वेरी गुड, शाबाश। शाबाश बोलते बस नंबर कम, परसेंटेज कम, बोलूं नहीं मैं। हाँ जी, आप समझ में आया कि क्या था क्वेश्चन? So basically, when you solve para-based questions, which are CAT level or ZAT level, they ask बताता हूँ नमन, they ask a lot of decoding, and you need to read them with a lot of analytical approach. So by going for analytical approach, आपका एनालिटिकल जो एक व्यू पॉइंट है वो तो डेवलप होता है, बट अब जिस स्पीड से अपन कर रहे हैं उस स्पीड को भी बढ़ाने की जरूरत है। सो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं, दे आर नॉर्मल क्वेश्चंस, बट आई विल गिव यू लेस टाइम इन सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस सो दैट यू विल चैलेंज योरसेल्फ इन डूइंग इट फास्ट। सो एनालिटिकल क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं उनके साथ साथ में अगर इस तरह के क्वेश्चंस का रिविजन करोगे तो एक स्पीड को एक अपने आप एक पुश मिलेगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ बेटर हो गई, ठीक है? दैट्स व्हाट आई थॉट, एंड इन फैक्ट आई थॉट कि ऐसे 2-3 सेशन में करता हूँ आपके साथ इस मंथ में, मे बी वन ऑन ईबे वाईटी पे, यहाँ पर कैसे भी, तो उसमें अपन थोड़ा रैपिड फायर टाइप कर सकते हैं, ठीक है? इसमें डाउट है क्या? The attainment of individual and organizational goals is mutually interdependent. Okay? अब ये अगर ठीक से वर्ड नहीं पढ़ा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये इंटरडिपेंडेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस। The attainment of individual and organizational goal is mutually, हाँ गलती करके सीखा ना, इंटरडिपेंडेंट। क्या होता है कि अपन क्या है, सारे वो हैं, वो ईशान अवस्थी वो वाले, तारे जमीन पे वाले, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। उसको वर्ड्स नाचते थे, अपने को क्या बिना वर्ड के बिना नाचे अपन उसको पढ़ लेते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द टाइम वी 1/100 seconds वी गिव टू अ वर्ड, लुक एट इट एंड वी अंडरस्टैंड कि यार ये तो ये है, और अपन ने पढ़ लिया।
a lot of students must have read it independent, जबकि वो interdependent है, और अगर वो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्लियर। जल्दबाजी में गलत हुआ, ध्यान तो देना होगा स्वप्निल। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज तो बताओ। बोले 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 बोले, इमोजी में मत बताया करो, पता नहीं लगता है। ठीक है, आज वाईटी वाले सेशन पे मजा आया था ना, वर्ड यूसेज वाले क्वेश्चंस। रिवीजन बैच की कोई भी सेशन मत छोड़ना, सारा कवर हो जाएगा कोर्स, ठीक है। चलो ये आएगी अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गो अहेड। ऑप्शन ध्यान से करना, मैंने वो 5 ऑप्शन वाला कर दिया, ध्यान से देखना है, 4 ही ऑप्शंस। वंडरफुल, 100%, क्या बात है। गलत मत करना, गलत मत करना, एक जना भी ध्यान से करना। ओहो, मैं सोचा क्लिक करूं उससे पहले किसी ने गलत कर दिया। ओके, लेट्स सी। Karan is getting 8 on 8. Garima, Sanchit, Pragati, Anurag are getting 7 on 8. Very good. Prince, Harsha are getting 6 on 8. Now, very nice. ठीक है, इसमें कोई इशू? अब बस तुम्हारा तो LOL आ जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे को वो मोमेंट क्लिक करना हो तो तुम 100% वाला मोमेंट ही नहीं देते हो। हाँ, मेरे बोलते ही जिंक्स होता है, और क्या। अच्छा, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसका गलत हुआ, सॉरी। अच्छा, मानसी ने सॉरी बोला, मानसी का गलत हुआ है। मानसी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बता समझ में आया नहीं आया? यू वांट मी टू डिस्कस दिस? इतना फास्ट में पैनिक बढ़ रहा? अरे पैनिक बढ़ जा रहा, अच्छा ठीक है, ठीक, ओके, थोड़ा सा टाइम बढ़ा के देंगे, ओके। बताओ, कोई डाउट है इसमें? ये इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा डिकोड करने का कुछ है नहीं, बट क्या है, व्हेन यू लुक एट द पैराग्राफ, और पैराग्राफ पढ़ते ही फिर उस पर एक क्वेश्चन होके जब आप सोचते हो ना, वो दैट माइंडसेट आई हैव टू ब्रेक, ओके। ई का ऑप्शन क्लिक हो गया डी की जगह, हाँ मेरे को लग रहा था प्रिंस ऐसा होगा, मैंने भी वो 4 वाला ऑप्शन क्लिक मैं चूज कर सकता था, बट आई मेड द मिस्टेक। ठीक है, बड़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। अब मैं क्लिक नहीं करूंगा, वी आर स्टिल गेटिंग 100%, somebody else should click and put it in the telegram group guys। रोहन, प्रगति, मेघ, Malay, Ranjan, Manu, Prerna, Sanchit, Saloni, Manthan, Shreya. Okay, we have only 35% people getting this right. Why? Should we do this? Should we discuss this one? Though the waste of time or the expenditure on fashion is very large, yet fashions have come to stay. They will not go, come what may. However, what is now required is that strong effort should be made to displace the excessive craze
फॉर फैशन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ दीज यंगस्टर्स। आएगा, रहेगा, वो जाएगा, लेकिन एक्सेसिव क्रेज जो है उसको हटाना है, ठीक है। द पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट फैशन इज द नीड ऑफ द डे। चलना, नीड कहां से आ गया? ऑल द थीम क्वेश्चंस वेंट रॉन्ग किसले? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो, ये तो नीड ऑफ द डे तो नहीं है, कोई इशू। हाँ या ना करो, छोटे बच्चों की तरह पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द फैशन इज द नीड ऑफ द डे कहीं पे लिख रहा है? नहीं। द एक्सेसिव क्रेज फॉर फैशन इज डेट्रीमेंटल टू वंस पर्सनैलिटी, ये कहाँ है? जिसने भी, जिसको बी में और सी में कंफ्यूजन हुआ, उनको बताओ ये वंस पर्सनैलिटी वाला कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बताओ, बोलो बोलो, बताओ बताओ। नहीं ना? हाँ, सी द होर्ड माइंड्स, कहाँ है माइंड्स मंथन? Though the waste of time or the expenditure of fashions is very large, yet fashions have to come. They will not go come what may. How what is now required is that strong effort should be made to displace the excessive craze for fashion from the minds of these youngsters. From the minds of these youngsters, mind में है उनकी और personality detrimental to one's personality. Manthan, what are you talking about? Fashion is detrimental to one's personality. मैं इन दोनों को अलग अलग समझाऊं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतना दूर है ये दोनों। वो तो हो ही जाता है पुष्पेंद्र, आई नो। क्लियर हुआ मंथन? वंस पर्सनालिटी और उनके माइंड डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल उससे डिसाइड करते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है फैशन से। क्या बोलते हैं? डी, वर्क एंड अदर एक्टिविटी शुड बी वैल्यूड मोर, ये पैराग्राफ में नहीं है। So C is the only one. The hoard for fashion should be done away with so as not to let down the constructive development. ठीक है? या आई गॉट दैट कंफ्यूजन। हाँ, कंफ्यूजन तो होता ही है बेटा, तभी तो क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये नूब भेजने वाली जनता कौन है यार? क्यों नहीं मानते हो तुम लोग? बताओ, क्यों मेरे को डिस्टर्ब करते हो तुम ऐसे? अनुपम, अच्छा ठीक है किसले। हाँ, चलो आओ नेक्स्ट। अनुपम बेटा, आप कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो किसी क्वेश्चन पे, पूछोगे ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। डी ऑल्सो like seems a good option if you want to displace fashion. Work and other activity should be valued more. What should be valued more than the outward appearance? Outward appear, ये तो फैशन की बात ही नहीं कर रहा बेटा। This is not talking about fashion. This is broader. नहीं रे, नहीं रे, नहीं 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 मनु, कोई बात नहीं। पर मैं एक्चुअली, मेरा टेक्निकल पॉइंट है नूब का कि मेरे को पता नहीं चलता किसने भेजा, तो मैं कम से कम पूछ भी लूं नाम लेके, है ना? चलो, ये तो हो गया। अच्छा सॉरी। अच्छा, बिफोर आई गिव यू फ्यू मोर क्वेश्चंस, रिमाइंडर गाइज, एक तो बग्स बाउंटी का ध्यान रखेंगे अपन लोग, ठीक है? विच एवर क्लास यू आर अटेंडिंग, स्पेशल पे, यूट्यूब पे, प्लस पे, कभी भी कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट व्हाटएवर इज बीइंग डिस्कस्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट इन पर्टिकुलर मैनर, वो अप्रोप्रिएट है नहीं है, द यू नो द टीम विल लुक इनटू इट, बट यू मस्ट रिपोर्ट, है ना? क्योंकि इतने वीडियोस होते हैं, इतना कुछ होता है बेटा, अगर कहीं पे कुछ गलत हो भी जाता है जो नहीं कन्वे होना चाहिए, मतलब नॉट अप्रोप्रिएट, सो वी बीइंग इंटेलेक्चुअल्स एटलीस्ट वी नीड टू लुक इनटू इट। अरे मेरी क्लास की बात नहीं है बाबा, आपको सारी क्लासेस का जो भी आप अटेंड कर रहे हो, ओके, और भी तो पढ़ते हो ना। चलो, अच्छा, आज हो गया थर्सडे, अनअकैडमी कॉम्बैट, जो लोग ने नहीं दिया है अभी वो देंगे, असेसमेंट के लिए देंगे, स्कॉलरशिप के लिए देंगे, स्कॉलरशिप मिल जाए, नथिंग लाइक इट। एंड एज इट इज 29 अगस्त को तो अपना वो वाला हो रहा है ना, मेगा वाला, उसमें तो लकी विनर्स को वो भी मिलने वाले हैं कुछ गिफ्ट्स, सरप्राइज गिफ्ट्स, तो वो भी अगर आ जाए, निकल जाए, तो मुझे भी बताना, ऐसा फोटोग्राफ क्लिक करके भेजना, ठीक है? एंड टू अनलॉक योर अनअकैडमी कॉम्बैट यू कैन यूज माय कोड, दैट्स TSMBA। आप थीम क्वेश्चन करके भूल जाओ मंथन, आप लोग सब लोग एक काम करो, just forget that it is theme you need to detect. It is simple, you read the paragraph. मैंने कभी भी आपको पैरा बेस्ड क्वेश्चंस अलग तरीके से नहीं कराया। मैंने आपको क्या कहा है, हमेशा 3 स्टेप में पैराग्राफ, द क्वेश्चन इज डिवाइडेड, one is the text, the other is the question, and then there are options. Just read the para, understand the question, and reject the options, and you automatically come to the right one. Decoding the question, which is second step, which is important, Manthan, right? इन्फरेंशियल बायस तो नहीं लगाना, इन्फरेंशियल बायस नहीं लगाना है ना? एनालाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स। चलो, ये पैराग्राफ पढ़ लो, I'm going to ask you 2-3 questions on this.
Yes, we can say that, Saloni. We can say that. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. आरसी तो कल ही हुआ था दिन, फिर हो जाएगा, कल कर लेंगे. पढ़ लिया? एक बार मैं साथ में पढ़ लूं 1 मिनट आपके, फिर उसके बाद आई विल गिव यू 2-3 क्वेश्चंस ऑन दिस. ओके. सम ग्रुप्स वांट टू आउटलॉ बर्निंग द फ्लैग. आउटलॉ, हाँ मतलब गलत, उनको नहीं लगता कि बर्निंग द फ्लैग पे कोई लॉ होना चाहिए. दे से दैट पीपल हैव फॉट एंड डाइड फॉर द फ्लैग एंड दैट सिटीजंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑट टू रिस्पेक्ट दैट. बट आई से okay, I say that respect cannot be legislated. Also, most citizens who served in the military did not fight for the flag. They fought for what the flag represents. So ऐसा flag नहीं करना है. Among the things the flag represents is freedom of speech, which includes, I believe, the right for a citizen to express displeasure with the government by burning the flag in protest. ये ऑथर का व्यू पॉइंट है, मेरा नहीं है. ठीक है, ऑथर का व्यू पॉइंट है ये. समझ में आ गया? और आपको ऑथर के व्यू पॉइंट के साथ चलना है, गलत मत करना कंफ्यूज होके. क्वेश्चंस दो. देखो किशले, ये सी चीज सीखो अभी, हो सही है नहीं है इस बायस से दूर रहोगे तो क्वेश्चंस ठीक होंगे. ठीक है, चलो. क्वेश्चन. I'll give you the poll. Wait. Very good, Sparsh. Shabash. ई नहीं है पोल में तो सोच ले, ई आंसर ही नहीं है, टेंशन क्या है? हाँ सर, हमारा लीडर बोर्ड कहता है अरे करण इज ऑन द फायर. हाँ 10 on 10. ये बात लड़के, शाबाश. तो आंसर बी है. ई वाला ऑप्शन मैंने शायद इसलिए नहीं उठाया हुआ, ध्यान नहीं गया होगा, है ना. ई तो है ही नहीं आंसर, क्योंकि प्रगति करना है, डिस्कस करना है. पैराग्राफ तो अच्छे से आप लोगों को सबको समझ में आ गया. अब क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द आर्गुमेंट मेड बाय द स्पीकर या ऑथर, जो भी है. ठीक है, कि भाई मैं ऐसा फ्लैग की ही रिस्पेक्ट कर लूंगा, उसी से मेरा रिस्पेक्टिंग आएगा, ये तो बात ठीक नहीं है. अब उस सेम एनालॉजी, उस सेम आर्गुमेंट वाला अपने को आर्गुमेंट उठाना था यहाँ पे. नहीं अनुपम, सी इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द आर्गुमेंट मेड बाय द स्पीकर. इसमें अकॉर्डिंग टू द पैसेज नहीं है. जो पैसेज में आर्गुमेंट है उसकी सेम एनालॉजी चाहिए अपने को इन ऑप्शन में, कि फ्लैग की रिस्पेक्ट करने से मैं रिस्पेक्ट करता हूं, ये इंपॉर्टेंट, ये कैसे प्रूव हो रहा है. ये अपना पॉइंट था ना, वैसा ही पॉइंट उठाना है अपने को यहाँ पे. अब बताओ इसमें कहाँ डाउट है, कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि सर ये वाला क्यों नहीं है, ये होना चाहिए था. The idea of freedom of religion also means the right not to participate in religion, right? तभी तो मेरा freedom of religion है, मैं अपना चूज कर सकता हूं और नहीं भी करूं, कुछ भी करूं, राइट. सो ये हो गया. अच्छा, सी में डाउट है किशले. The constitution guarantees freedom to own property, so taxes should be illegal. नहीं नहीं, ये तो इनवैलिड बात हो गई ना किशले, एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी, में जाके खरीद सकता हूँ. टैक्सेस तो अलग चीज है ना. वो घर जहां बना हुआ है, उस पर सड़क है, उस पर बिजली आ रही है, उन सब के लिए जा रहे हैं ना टैक्सेस. तो दोनों अलग अलग बातें हो गई. सी कैसे ऑप्शन, क्या वो कुछ खाया है आज? हाँ किसले सो गया? हिमांशु कह रहा है सो सॉरी सर, सो गया था. अच्छी बात है ना.
सर मैं गिर गया था, लग गई, क्या हुआ, मैं बेड पे गिर गया था, नींद लग गई, है ना? अच्छा है, सोया, अच्छा है, सोया करो। हाँ किस लिए, क्या खाया था बेटा? सलोनी, ई क्यू नहीं। अच्छा, in order to understand what may be constitutional today, one needs to look at what the laws were when the constitution was enacted. यार बेटा मेरी बात सुनो एक बार। पैराग्राफ में एक पॉइंट कन्वे किया ऑथर ने कि मैं अगर मेरा जो रेस्पेक्ट है वो फ्लैग से तो नहीं आएगा ना, कि मैं फ्लैग की रिस्पेक्ट कर लूं तो रेस्पेक्ट आ जाएगी, ये पॉइंट था। वैसा ही पॉइंट अपने को ढूंढना है। अब ई उस पॉइंट से रिलेट भी कर रहा है कहीं पे सलोनी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट मे बी कॉन्स्टिट्यूशन टुडे, वन नीड्स टू लुक एट व्हाट द लॉज वर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनैक्टेड। ये वो सेम एनालॉजी थोड़ी है, तो एनालॉजी करना था ना आपको। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो फिर तो सारा एलिमिनेट करके बिल्कुल सही हो जाएगा मंथन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर क्वेश्चन तो समझ में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द आर्गुमेंट मेड बाय द स्पीकर, यानी कि टर्माइट इज टू इंसेक्ट, टर्माइट इज टू इंसेक्ट। अब ये ऑप्शन ढूंढना है, टर्माइट इज टू इंसेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है, यस और नो। और आप कहते हो कि फ्लेम्बॉयंस, फ्लेम्बॉयंस इज टू फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो क्या है? फ्लेम्बॉयंस इज टू फ्लेमिंगो क्या है? फ्लेम्बॉयंस इज दी, बताओ, सिखाया था ना आपको, आता भी होगा, हाँ, ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगोज इज कॉल्ड फ्लेम्बॉयंस। ये तो ग्रुप हो गया। एंड टर्माइट इज अ काइंड ऑफ एन इंसेक्ट हो गया, तो सेम एनालॉजी थोड़ी हुई। फ्लेम्बॉयंस इज द ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगोस, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन वाला रिलेशन। ये हो गया टर्माइट इज अ काइंड ऑफ एन इंसेक्ट, तो एनालॉजी तो सेम ढूंढोगे। इसने का सेम एनालॉजी, सिमिलर टू द आर्गुमेंट मेड बाय द स्पीकर। सो द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो मींस द राइट नॉट टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजन। सो मैंडेटेड स्कूल प्रेयर्स वायलेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि अगर मैं प्रेयर नहीं करूं तो नहीं करूं, उससे थोड़ी क्लियर होगा कि मैं बाकी रिलीजन की रेस्पेक्ट कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इंफॉर्मेशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, वेरी गुड स्पर्श, शाबाश, संचित, अंकित, बहुत बढ़िया। देखो 100% आ रहा है मैं। ओके, गुड गुड, 70% प्लस स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट राइट, वेरी गुड। एक बार लीडर बोर्ड देख लें। अरे वाह भाई, करण 11/11, गरिमा 10/11, संचित 10/11, प्रगति 10/11, वेरी गुड वेरी गुड। अनुराग 9, अंश 7, मनु 7, क्या बात है। प्रियंका सेज बी क्यों नहीं होगा? अच्छा, people who burn the flag usually commit other crimes as well. वापस से जाओ प्रियंका क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीक करना है। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है? दैट रिस्पेक्टिंग फ्लैग, हाँ, ऐसे उसको गिरने नहीं दूं मैं जमीन पे और ये सब है, ये यही सब रिस्पेक्ट थोड़ी है। वो ये नहीं कह रहा मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कह रहा है कि फ्लैग तो रिप्रेजेंटेशन है मेरी कंट्री का, मेरी फ्रीडम का है, उसी को मैं, उसको मैं बर्न नहीं कर सकता, उसको मैं यूज नहीं कर सकता किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुई। इसको तो ये नहीं कह सकते कि भी मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, राइट, ये है ना। अब इसको अपने को वीकन करना है, यानी कि उसके अगेंस्ट बोलना है आपको, उसके अगेंस्ट बोलना है। सो एन एक्शन इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया। बी क्यों नहीं होगा? पीपल हु बर्न द फ्लैग यूजुअली कमिट अदर क्राइम्स एज वेल। ये आउट ऑफ स्कोप वाली बात है ना। ये कैसे अज्यूम, ये अगर वो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। पीपल हु बर्न द फ्लैग यूजुअली कमिट अदर क्राइम्स एज वेल। पीपल हु बर्न द फ्लैग, आर दे डूइंग समथिंग constitutional or they are not doing anything constitutional? Their committing crime is something else, that's out of scope.
Could I, was I of any help? प्रियंका, कुछ समझ में आया इसमें बेटा? एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया स्पर्श, क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी, बहुत ही बढ़िया। स्पर्श ने कहा कि जैसे बग्स बाउंटी डजंट मीन दैट स्टूडेंट्स डोंट रिस्पेक्ट एजुकेटर्स, इसका मतलब ये थोड़ी है, लेकिन हाँ कुछ इनअप्रोप्रिएट हुआ तो वो रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बग्स बाउंटी ला दिया है वो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अब पकड़ेंगे, देखो भाई साहब जिसने उल्टा सीधा बोला ना हम तो बताने वाले हैं, राइट? बहुत अच्छा स्पर्श, बहुत बढ़िया। आपने समझ में आया स्पर्श ने कहा लाइक बग्स बाउंटी डजंट मीन दैट स्टूडेंट्स डोंट रिस्पेक्ट एजुकेटर्स, बट एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट दे कैन क्लेम, राइट? सो प्रियंका का तो यस आ गया। बाकी किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है। आई थिंक द सेंटिमेंट इज लाइक यू गाइस आर गेटिंग कंफ्यूज नाउ। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको 100% लेकर आते हैं। चलो लेट्स गेट 100% इन दिस। आराम से रिजेक्ट करो ऑप्शंस को, रॉन्ग ऑप्शंस रिजेक्ट करो, अपने आप सही पे आ जाएंगे हम। यार एक बात बताओ बेटा मेरे को, कुछ लोग जानबूझ के गलत करते हो क्या आंसर? बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज और आप ऑप्शन टिक कर रहे हो फ्लैग बर्निंग ऑलमोस्ट नेवर हैपेंस, सो आउटलॉइंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। बात ही मत करो, होता ही नहीं सर, ये तो बात ही गलत है जी, कोई नहीं करता है ऐसे। छोड़ो क्वेश्चन बंद करो। ये कौन किस क्या सोच के बी किया आंसर? या टाइम पास करते हैं अपन, नहीं अपन कुछ और ही बोलेंगे। या फिर ऐसे निकलते करते ऐसे घूमते घामते करें, या फिर गलती से बी हुआ? हाँ वही, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग मनु, कि हो सकता है गलती से क्लिक हो गया। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है मनु। मैं सर गलती से, अच्छा मानसी मिस क्लिक हो गया, अच्छा गरिमा मिस क्लिक हो गया, ओहो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके। So to outlaw flag burning is to to outlaw flag burning is to outlaw what the flag represents. हाँ जी, अभी इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। सही ऑप्शंस का सर सेलेक्ट करें। एक सेशन इस पे। अंश एक बार ठीक से समझा बेटा, सही ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करें? अरे सारे क्वेश्चन तो इतना इलेबोरेट कर करके समझाता हूँ, करवाता हूँ, बताओ। एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ आराम से, एक एक क्वेश्चन रिजेक्ट करवाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। पहले रीडिंग करो खूब सारी। प्रियंका का जेस आ गया, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये सेशन फिर से देखना। देखो कई बार क्या होता है कि फोकस भी काफी सारी पढ़ाई हो जाती है किसी दिन, तो फोकस भी नहीं रहता है। मैं जैसे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि यूजुअली आरसीज वगैरह जब द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू डू इट, यू हैव द बेस्ट फोकस, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम समझ में आ जाए और लगे कि इसमें को गलत करने का कुछ था ही नहीं, गलत हुआ कैसे था मेरा। सो होता है किश, डोंट बी हार्श विद योरसेल्फ, इट हैपेंस समटाइम्स, इट हैपेंस। आज खुद के स्कोर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपकी। अरे मेरी वजह से नहीं होता मानसी, मेरे पढ़ाने से होता तो सारे बच्चे नहीं क्रैक कर जाते। तुम्हारे पढ़ने से होता है बेटा। क्रेडिट टीचर्स को नहीं जा, आई पर्सनली डू नॉट फील दैट द क्रेडिट गोज टू टीचर्स, आई डू नॉट अग्री टू दैट। हाँ अप्रिसिएशन इज गुड, नो डाउट्स अबाउट इट, बट मेरी वजह से नहीं, वो आपने पढ़ना शुरू कर दिया है ठीक से। चलो क्या बोलती पब्लिक, एक दो हो जाए, एक सेट और ऐसा, या देखो एक सेकंड रुको, ये वाला सेट फिर लंबा हो जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट करें दो चार।
बोलो क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट कर लें दो चार, एक उसके बाद टाइम होगा फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट करते हैं राउंड फिगर में। मनु, ठीक है ठीक है, चलो आओ। ठीक है। हाँ, बाकी जस्ट टू कंटिन्यू वन और टू सेंटेंस ऑन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि क्रेडिट एंड ऑल। क्रेडिट इज समथिंग, क्रेडिट एक बहुत बड़ा वर्ड होता है एक्चुअली, इसलिए हाँ अप्रिसिएशन मैं खुद कहता हूँ कि दुनिया में शायद नहीं, आई एम सो श्योर दैट नोबडी वुड से कि अप्रिशिएट किया मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना। अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स आते हैं इतने अच्छे से, मैं यूट्यूब पे पढ़ता हूँ कई बार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कोशिश करके रिप्लाई भी करता हूँ सबको। इनफैक्ट डेडिकेशंस आते हैं ऐप पे, है ना। सो अच्छा लगता है, वी टॉक अबाउट इट। सो हाँ, मन लग जाता है पढ़ाई में। टीचर्स एक्चुअली नो, टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, तो कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते हैं। चलिए, सो अपने को कॉज एंड इफेक्ट की बात करनी है, ठीक है ना। हर्षा में समझा नहीं बेटा, व्हाट डिड यू राइट, क्यू यू आर, कंसिस्टेंसी इंप्रूव हुई है, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, गुड 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 गुड। Before I take you to next question, the last confession, sometimes when I feel low, due to any reason, whenever I feel low, I sometimes you do what, all those dedications and all you write, I go back onto the website sometimes and I open those dedications and I start reading. It lifts my spirit as well. हम सब में कोई फर्क नहीं, हम सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, बस हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ लें तो सब अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एज अ टीचर पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना अच्छा या बुरा कुछ होता नहीं एक्चुअली, जितना एक दूसरे को हम हौसला दे सकें, है ना। और यू गाइस डिजर्व, बिफोर आई मूव ऑन, लास्ट स्टेटमेंट, आप लोग, मैं जितना मैं इंटेलिजेंट था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई डोंट नो हाउ मच, बट इतना नहीं था जितना आप लोग हो, ट्रस्ट मी। इस जैसा मैंने डोंकी वर्क खूब किया, मैंने बहुत टाइम तक खूब लग के साथ रगड़ के पढ़ाई करी, तो आप भी बस वो करो, और इतने अच्छे से करते हो आप लोग, ठीक है। चलो आ जाओ। एग्जैक्टली किसले। चलो सॉल्व। अंश, स्पर्श, ध्रुव, वेरी गुड वेरी गुड। Why percentage is so low when it comes to this question? Cause and effect भूल गए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है सामने। सो बेसिकली ए को छोड़ के सब में बढ़ गया है आंसर, हाँ ठीक है। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं, गरिमा पीछे, ओहो गलत कर दिए, दो और क्वेश्चन, गलत बात। चलो करण, 13 on 13। करण बेटा क्या मतलब, यूं बाहुबली वाला गाना चल रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में, चलो। प्रॉब्लम कहाँ है? The prices of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged for the past few months. ठीक है, स्टेटमेंट पे रहना, इससे परेशान होते हो ना, आंसू ना आ जाए पढ़ते हुए। The prices of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged in the past few months. The crude oil prices in the international market have gone up substantially in the last few months. तो बेटा ये सही बात है, ये तो इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट है ना। ये डोमेस्टिक मार्केट की बात हो रही है कि डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल एंड डीजल का अनचेंज्ड है, हाँ पास्ट फ्यू मंथ से। हो सकता है पहले बढ़ाया हो उसके बाद उसको अनचेंज रखा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में अप गए हैं, उसका अपना रीजन है डिमांड एंड सप्लाई का। तो ये दोनों इफेक्ट है बेसिकली।
लेकिन इनमें आपस में कनेक्शन आपने क्या किया, आपने एक बिल्कुल लेस नॉलेज के साथ ऐसे कनेक्ट कर लिया कि जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा या कम होगा तो डोमेस्टिक मार्केट में भी तो कम और ज्यादा होगा। नहीं, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों अलग अलग चलते हैं। ये जो जितने लोग इंस्टाग्राम को देख के ऐसा सीख गए ना कि पेट्रोल के प्राइस श्रीलंका में इतने, पाकिस्तान में इतने, हमारे यहाँ इतने, हमारी जनता ने लूट लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बेटा पढ़ो इस बारे में थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इस बारे में थोड़ा पढ़ो, इंस्टा नॉलेज पे नहीं जाओ, है ना। फेसबुक पे डिग्री, व्हाट्सएप से डिग्री कोई नहीं लेगा। दोनों इफेक्ट हैं, दोनों के कॉज इंडिपेंडेंट हैं, है ना। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रॉक्स, बिल्कुल सही किशले, बिल्कुल सही। लेके चलूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो चलो ट्राई करो। अरे वाह, 100%। मैं क्लिक करने की कोशिश करूं। ओके ओके। नहीं नहीं, वो ऐसे से काम नहीं चलेगा ना स्पर्श, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। आई वांट टू सी एवरीबॉडी गेटिंग फाइनली 100%, वो है पॉइंट। द पॉइंट इज दैट। सो चलो ठीक है, 80% पीपल आर गेटिंग द राइट आंसर। सबसे पहले तो किशले ने, क्या क्या बात है, निकुंज, अंश, ध्रुव, स्पर्श, आशुतोष, संचित। आशुतोष आ गया या बीच में ऐसा ऑफिस में बैठ के चुपचाप अटेंड कर रहा है क्लास। ओहो, करण इज 14 on 14। हाँ, मोटिवेशन के लिए काफी बेटर हो गया आशुतोष। यू स्टिल इन ऑफिस आशुतोष, वर्क फ्रॉम होम आ गया ठीक है, घर पे हो, ठीक। क्लास अटेंड करते करते ऐसा तो नहीं कभी कभी यूं बीच में हंस रहे हो, पता चला यूं ऑफिस में लोग बोल रहे हैं कि क्या भाई ऐसा, क्या मतलब क्या करते हो तुम टीवी वैसा स्क्रीन पे देखते देखते, वो मोमेंट्स होते हैं ना कभी कभी। सो इसमें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए किसी को। फिर भी जिनका गलत हुआ है अगर पूछना है तो बताओ, जिनका सही हुआ है लेकिन फिर भी डाउट है तो पूछो। देखो, पढ़ते पढ़ते वही लोग मजे कर पाते हैं और हंस पाते हैं जो कंसिस्टेंटली साथ में पढ़ते हैं। फिर कुछ कॉमन जोक्स आने लग जाते हैं। अपना वो बिक्की वाला है, वो बेचारा देखो, बिक्की को आज तक उसका वो जेस करवा रहा है लोगों से, लेकिन वो पहुंचा नहीं अपने मुकाम तक गलती हो रहा है रोहित, कोई बात नहीं। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, अपन आगे चल सकते हैं ना। बी करना था, ये टाइप हो गया, दैट्स ओके। ओके ओके, वी मूविंग अहेड, राइट। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई नो आई नो। मेरे भी मॉर्निंग वाले एक दो सेशन तक तो मेरे को भी कुछ कुछ आई एम आल्सो कंप्लीटली इन्वॉल्व, बट ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ता है टाइम, फिर देन आई हैव माय अदर वर्क एज वेल, तो फिर समटाइम्स आई गेट टायर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, मुझे किसी ने पूछा नहीं इसमें कोई डाउट, तो आई एम मूविंग अहेड नाउ चलो, 15th। 10th है, बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हमने। वेरी गुड स्पर्श। यहाँ लग रहा है मुझे अच्छी लड़ाई होने वाली है, हाँ?
ओके, चलो लड़े आओ। निशांत सर का लेक्चर था। निशांत सर, सॉरी बेटा मेरे को आइडिया नहीं है। निशांत सर क्या पढ़ाते हैं? निशांत गुप्ता सर, अच्छा ओके। LRDI पढ़ाते हैं, ओके ओके ओके। अच्छा अब इधर आओ, इसमें क्या इशू है, क्या डाउट है किसी को? क्यों आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज द इफेक्ट? नहीं है, स्टेटमेंट फर्स्ट इफेक्ट है ना, और स्टेटमेंट 2 जो है वो कॉज है उसका। हाँ देखो, पहले स्टेटमेंट 2 पढ़ो। द स्मॉल बैंक्स इन द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया आर नॉट इन द पोजीशन टू विथस्टैंड द कॉम्पिटिशंस ऑफ द बिगर इन द पब्लिक सेक्टर. So the Reserve Bank of India has recently put restrictions on few small banks in the country. The Reserve Bank of India has recently put restrictions on few small banks in the country. कुछ मिसिंग है क्या? मुझे क्यों एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ये कंपटीशन विथस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से तो रिस्ट्रिक्शन, रिसेंटली पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। हम्म। नहीं देखो, ये नहीं आप कह सकते कि रिजर्व बैंक ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है, छोटे बैंक्स होते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता, क्रेडिट पे नहीं आता, तो ये आगे लोन नहीं दे पाते, इनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है, एक सेकंड, जिनका कुछ सही हुआ है उनका पॉइंट एक बार सुनने दो। रुको रुको रुको, देखो कर लेंगे ना, सीखना इंपॉर्टेंट है ना। हाँ सर, रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज वो अभी उतने मेच्योर नहीं है टू फैसिलिटेट लार्जर ट्रांजैक्शंस। ये तो बात बिल्कुल ठीक है स्पर्श, के वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो ट्रांजैक्शंस कर पाए, सो उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, बट इज इट द इफेक्ट ऑफ बिकॉज दे आर नॉट एबल टू विथस्टैंड द कंपटीशन? ये तो थोड़ा लड़ाई भरा क्वेश्चन है। क्या कहते हो गाइस? देखो, स्मॉल बैंक्स इन द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया आर नॉट इन अ पोजीशन टू विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन ऑफ बिगर इन द पब्लिक सेक्टर, नो डाउट्स अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। छोटे हैं उसके रीजन अपने को थोड़ा बहुत आइडिया भी है, अपनी जीके है इसमें, हमने को पता है। अब यहाँ इसने कहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन सम और फ्यू स्मॉल बैंक्स, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे, कुछ के भाई बड़ा बिजनेस लोन नहीं दे सकते, इससे बड़ा लोन नहीं दे सकते, एचएनआई इसको हैंडल नहीं कर सकते, कुछ कुछ बात होगी। बट इसकी वजह से ये करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सर ये तो भी हो सकता है रेस्ट्रिक्शंस हैं इसलिए भी नहीं कर पा रहे। आई फाइंड बोथ ऑफ देम इंडिपेंडेंट। आई फाइंड बोथ ऑफ देम इंडिपेंडेंट, और दोनों ही इफेक्ट है, कॉज तो नहीं, मुझे ये इसका कॉज नहीं लग रहा समहाउ। सर अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो दे माइट गेट इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग जस्ट टू मेक देयर पोजीशन अमंग बिग प्लेयर्स। यस दैट्स आल्सो राइट, दैट्स आल्सो वन इनसाइट, राइट स्पर्श? बट assumption नहीं लभेश, जो सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं का दिखता है मैसेज, है ना? हाँ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। स्पर्श ने कहा कि अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो दे माइट गेट इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग जस्ट टू मेक देयर पोजीशन अमंग बिग प्लेयर्स। अगेन स्पर्श, यू यूज द वर्ड माइट, राइट? सो अब यहां पर अपन अजम्पशन पे जा रहे हैं, है ना? सो ये इसका ठीक है, लेट मी इसको एक काम करते हैं,
इसको, इसका ही आंसर अपन रखते हैं अभी ऐसे, इसको नहीं मानते अपन, और इस पे थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, ऐसा इंडिविजुअली सोचते हैं और फिर इसको समझते हैं। सो स्पर्श के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी कि इसको एग्जैक्टली मैं कहाँ पर लेके चलूं, और आप लोग अपना अपना फाइनली सोचो, इसके स्क्रीनशॉट या पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करते हो, वो देख लो, एंड देन फिर लड़ लेते हैं थोड़ा सा कभी, क्यों? और जब लड़ेंगे तो वो कहा था कि, वो कहते हैं ना, विवेकानंद जी ने कहा है ना कि अगर 1-1 रुपया, 2 रुपए होंगे और 1-1 रुपया बांटेंगे तो आपके पास भी एक होगा और मेरे पास भी एक। और अगर अगर ज्ञान आपस में बांटेंगे, कोई 2 होंगे हमारे पास और हमने आपस में बांट लिए, तो दोनों के पास 2-2 हो जाएंगे, है ना? तो ठीक है, डिस्कस करेंगे, लड़ लेंगे। ठीक है, डन। आई थिंक वी आर टायर्ड। अभी एक क्वेश्चन जो और हमारा रह गया था, उसको नेक्स्ट कभी रिवीजन क्विज कर लेते हैं नेक्स्ट वीक। व्हाट डू यू से? अच्छा, बिफोर यू गाइस साइन ऑफ, आई वुड आल्सो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कल के लिए। कल मैं आपको 1-2 पैसेज कराऊंगा जो मैंने पहले भी कराए थे आपको, आई एम टेलिंग यू, बट आई वांट टू डू इट अगेन। सो जिन स्टूडेंट्स ने कर रखे होंगे वो करना, आई वांट टू डू दैट दोस पैसेजेस अगेन। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एंड आई फाउंड देम वेरी गुड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, एंड एज इट इज 2 महीने 3 महीने पहले के किए हुए हैं। सो वो छोटे छोटे 2 पैसेजेस हैं, वन शॉर्ट पैसेज। आई पर्सनली फील यू शुड डू इट अगेन प्रॉपर्ली, ठीक है? सो कल 5 बजे, 5 to 6:30, 2 passages together. What do you guys say? ठीक है, स्पेशल में। अच्छा, 1 PM वाला जो सेशन होगा, दैट विल बी ऑफ मिक्स्ड बैग, इसका अपना ओनली ऑफ पैरा बेस्ड क्वेश्चन, ओनली ऑफ पैरा बेस्ड क्वेश्चन। सम 8 to 10 क्वेश्चंस करेंगे। हाँ लबेश, अभी तो बस इतना ही था सेशन आज का, है ना? तो ये होगा, और सब कुछ होगा उसमें, मिक्स्ड बैग ऑफ पैरा बेस्ड, समरी वमरी सब, जितने पैरा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी तरह के, वो हो जाएगा। और 5 to 6:30 वी कैन सॉल्व 1 or 2 पैसेजेस, नॉट पीवाईपी। ये पीवाईपी नहीं है, प्रीवियस ईयर पैसेज नहीं है, वो बाद में कराऊंगा फिर कंटिन्यू, ठीक है? फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा मेरी तरफ से। डन, चलो ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना बस कि सीआर को ना बिल्कुल हर 4-5 दिन में एक बार उसको रिवाइज करो, कीप रिविजिटिंग सीआर, और वो मैं कर लूंगा, आप छोड़ो, आप अपने बाकी और पढ़ो, मैं आपको 4-5 दिन में एक सेशन सीआर का ऐसा देख के रिवाइज करवा दिया करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल पिन नहीं करूंगा मैं पीडीएफ, ये डाउनलोड कर लो चुपचाप। ओके, हाँ। So before I would also sign off, I would just remind you all and reinforce that pick up your subscription. You picked up your subscription, Labhesh, huh? Good, very good, very good. So pick up your subscription, Plus or Iconic. Choice is yours. I would suggest go for Iconic. Number 2, structured preparation जरूरी है, ठीक है? हाँ जी. And when you do that, you can use my code. Hasta la vista. When you can use my code, that's GSMBA, that's 10% additional benefit. And long term is always cost effective. Steps to get subscription is very easy. Go to app, pick up, just click on this get subscription, select cat. ये सब कुछ आता है, तुमको मुझसे ज्यादा पता है ना? कर लो। और रेफरल कोड पता ही है, याद हो गया होगा अब तो, ये मेरा नाम, ये तुम्हारा सपना, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और रिवीजन बैच 1 PM पे बने रहो, ठीक है? प्रगति, वो क्वांट के लिए ना मुझे वो परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कर पाएंगे हम, ठीक है? चलो, whoever is not a part of our telegram group, guys, join us please, quick. अब सोचना नहीं कितने दिन रह गए, क्या हो गया, बस काम करते चलो। बाय। मैंने पढ़ लिए सारे ये सजेशंस, लेट मी लुक इनटू इट कि अपन क्या कर सकते हैं। चलो बाय। नहीं, मैं क्वांट नहीं, मैं विद अनअकैडमी आई डोंट टेक क्वांट। टाटा, बाय बाय, सी यू।